Hey there everyone, I am Shivani and welcome back to my channel. So in my last video I shared 28 small life-changing habits of mine, and to be honest मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किया था, but I got such amazing responses. So thank you so much for that. If you haven't checked out that video, I will be linking it up here. So in this video I wanted to continue that discussion around habits because मुझे लगता है habits सच में life में बहुत बहुत important है. So for today I will be talking about this amazing book I read last year. It's called Atomic Habits by James Clear. This was on my to-do list for a very long time, totally worth it. And through this, I got to know so many new things, and it changed my whole perspective around goal setting, around habits in general. I also created another video called 22 Goals for 2022, and in that video I made my resolution for this year, following all those things I learned in this book. So if you haven't checked that one out, I will be linking up there. But without further ado, let's get started. So yes, talking about atomic habits, James Clear says that atomic habits are basically these really small, tiny habits that do not take a lot of time, that are very easy to do, and it basically becomes a part of our routine. It becomes like a regular practice जो बहुत टाइम के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपको कॉन्शियसली उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता. सो बेसिकली बहुत छोटी आदतें जिनका जो इम्पैक्ट है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा ओह सो मच हैज चेंज. तो अगर आपको एक चीज़ है जो आप रोज करते हो, अगर आप एक पेज एक बुक का पढ़ते हो, राइट, तो आपको रोज लगेगा कि चल एक पेज ही तो है, पढ़ लो, बट आफ्टर अ ईयर यू वुड हैव रेड लाइक 365 पेजेस, सो दैट माइट बी one book, 1.5 books. So in the long term you would see the impact. In the starting of the book it says very interesting thing जो मैंने पहले भी सुना है. So it says that अगर साल की स्टार्टिंग में you start to work on yourself, and for 1 year if you just become 1% better each day, just 1% better each day, you will be 37 times better after the year ends. Imagine, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिर्फ 1% बेटर होना है. अगर आप अपनी आदतों को क्वांटिफाई कर सको, जिस भी आदत में आप बेटर बनना चाहते हो, so after the entire year you will be 37 times better. But at the same time, if you have to become 1% worse, 1% bad in the entire year के end में you will almost come back to zero. So this is how much impact those small tiny habits have in our life, and this is how big they are. हमें पता नहीं चलता, but that's how big they are. So this book has an amazing quote which says, we don't rise to the level of our goals, we actually fall to the level of our systems. Because कई बार ऐसे होता है, especially again जब हम goals resolution set करते हैं, we think big, हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, but it's very important that we also design our systems accordingly, our environment accordingly, और फिर हम उसके according छोटी छोटी आदतें करें जो फिर compile होके, compound होके it becomes better. So let's talk about the science of habits. So no matter how much good or bad your habit is, it can easily be broken down into 4 steps. ठीक है, पहला है आपका क्यू मतलब कोई भी एक ऐसा ट्रिगर जो आपको अपनी किसी हैबिट की याद दिलाता है. अब वो कोई अच्छी भी हो सकती है, कोई खराब भी हो सकती है, बट वन इज योर क्यू. सेकेंड इज योर क्रेविंग. जब वो आपको क्यों मिला, मान लीजिए आपने मास्टर शेफ के शो में कुछ एक अच्छा खाना देखा और आपको क्रेविंग हो गई कि यार कितना टाइम हो गया रसमलाई नहीं खाई है, या कुछ भी ऐसा, सो दैट इज योर क्रेविंग. थर्ड इज योर रिस्पॉन्स. जो आपको मन किया, आपको जब क्रेविंग हुई तो क्या आपने रसमलाई जाके खा ली. सो इट कैन बी योर थॉट्स, इट कैन बी योर एक्शन, जैसे भी आपने उस क्रेविंग को रिस्पॉन्ड किया. एंड फोर्थ इज योर रिवॉर्ड, कि जब आपने रसमलाई जाके खा ली, ओहो, फिर जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट हैप्पीनेस जो उस टाइम पे मिलती है, दैट इज योर रिवॉर्ड. और आपको फिर लगता है कि नहीं, रसमलाई खाना अच्छी बात है क्योंकि मुझे बड़ी खुशी मिलती है. सो दीज आर 4 स्टेप्स. सो इन द नेक्स्ट सेक्शन आई एम गोना टॉक अबाउट 4 लॉज दैट विल हेल्प यू अट्रैक्ट ऑल द गुड हैबिट्स इन लाइफ. So boys and girls, take out your notepads, your iPads, laptop, whatever, and start making notes because this is very important. First up is the first law of attracting good habits in life, and it is make your habits obvious. हम जब भी behavior change की बात करते हैं ना, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम realize करें कि who we are. We become aware of ourselves and of our habits. इसके लिए एक बहुत ही interesting activity है इस book में which says that आप ना दिन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी habits, जितनी भी चीज़ें आप करते हो, activities करते हो, उन सबको लिस्ट डाउन कर लो. आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है तो यू जस्ट राइट व्हाट यू एक्चुअली डू. अगर सुबह के 11 बजे उठते हो, रात को 3 बजे सोते हो, जो भी करते हो वो सब कुछ एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिखो. और फिर जो भी आपको लगता है कि आपकी अच्छी आदतें हैं, मेक इट अ पॉजिटिव साइन right in front of that habit. If you think it's a bad habit, make a negative sign, and if it is like a neutral habit, just make a equal to sign in front of it. For example, turning off the alarm is a neutral habit, going to the washroom is a neutral habit. I mean, जो जैसा भी आपको डालना है, but you get a sense, right?
उस चीज़ को जो आपका वो रेडी हो जाएगी, वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आपको रियलाइज होगा कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं लाइफ में करता या करती हूँ, एंड दिस इज हाउ गुड इट इज़ और बैड इट इज़. इट विल जस्ट मेक यू more aware about yourself. So that is the first thing. The second thing that you can do इज़ दैट हमारी लाइफ में ना हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं. फॉर मी इट्स विल बी समवन लाइक प्रियंका चोपड़ा इंस्पायर्स मी अ लॉट, और मे बी राधा देवरूखिया शेट्टी, आई टॉक्ड अबाउट हर इन द लास्ट वीडियो एज वेल. शी इंस्पायर्स मी अ लॉट. आई वांट टू बिकम लाइक दोज पीपल. तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूंगी कि अच्छा अगर वो लोग हैं जो मुझे पसंद है, उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो वो करते हैं यूजुअली. आई वॉच देयर इंटरव्यूज, गेट अ सेंस ऑफ देयर थॉट प्रोसेस, हाउ देयर एनर्जी, हाउ देयर वाइब इज, एंड देन आई वुड लाइक टू फॉलो दीज थिंग्स. सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू. द थर्ड थिंग इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, विच मीन्स हम ना जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स, रेजोल्यूशंस, आदतें सोच तो लेते हैं, बट हम ये नहीं डिसाइड करते कि हम कब करेंगे और हम कहाँ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि हम ना 10 बुक्स पढ़ लेंगे, बट हमको ये नहीं पता कि वो छोटी आदतों में कैसे कन्वर्ट होगा और हम कब वो एक्टिविटी करेंगे. सो डूइंग समथिंग वेरी सिंपल, लाइक मान लीजिए आप 9 बजे उठते हैं एंड आप डिसाइड करो और आप पानी कम पीते हो फॉर एग्जाम्पल. तो आप सोचो मैं 9 बजे उठने के बाद जो पहली चीज़ करूँगी वो पानी पीऊँगी. रात को सोने से पहले जो लास्ट चीज़ करूँगी वो 1 ग्लास पानी पीऊँगी, या ऐसा कुछ भी एक एक्टिविटी जिसको आप एक सर्टेन टाइम दे दो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि 6-7 बजे अराउंड में अपना काम करके, जॉब का सारा काम खत्म करके मैं फ्री हो जाती हूँ, देन आई जस्ट like when I shut down my लैपटॉप, आई विल चेंज इन टू माई वर्कआउट क्लोथ्स एंड आई स्टार्ट वर्किंग आउट. तो इससे क्या होता है कि आप ये डिसाइड करते हो कि कोई एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी आप कब करने वाले हो. एंड व्हेन यू आर चूजिंग अ न्यू हैबिट, आई थिंक इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि आपके नॉर्मल डेली लाइफ में विदाउट डिस्टर्बिंग अ लॉट, where will your that habit actually fit into the place. So that will be the third thing. The fourth thing is pretty cool. It's called habit stacking. हम सब की जो आपने वो एक्टिविटी की, आपको पता है कि मैं 10 बजे उठती हूँ, 9 से 10 के बीच में टीवी देखती हूँ, 3 से 4 सोती हूँ, या कोई भी आपकी जो आदतें हैं, हर आदत के बाद आप अपनी कोई एक नई हैबिट फिट कर दो. फॉर एग्जाम्पल आप अगर डिनर के बाद 1 घंटा फ़ोन चलाते ही चलाते हो रोज़, ठीक है, तो आप सोचो ठीक है मैं 1 घंटा फ़ोन चलाऊंगी, उसके बाद आधा घंटा आई विल रीड अ बुक, 5 मिनट आई विल रीड अ बुक. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके करंट हैबिट के बाद एक न्यू हैबिट ऐड करने से ना आपको एक पॉजिटिव क्यू मिलता है. सो व्हेन यू डिसाइड अ न्यू हैबिट, यू हैव द लोकेशन, यू हैव द टाइम, सो यू विल जस्ट गेट positive cues and you will try to make your habits obvious. The second law is make your habits attractive. So there is something called dopamine which is released in our body whenever we are doing something that makes us happy or makes us excited, right? This book says dopamine सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब आप एक्चुअली वो एक्टिविटी कर रहे होते हो, व्हेन यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दैट प्लेजर, बट इट ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू आर एंटिसिपेटिंग इट, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई इंटरनेशनल ट्रिप बन रहा है, तो अगर मैं ट्रिप में गई भी नहीं हूँ, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, बट अगर इफ आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, आई एम जस्ट लाइक एंजॉयिंग कि उफ बीच में बैठो कितना मजा आएगा, stuff like that, that will also make dopamine release in my body. So just anticipating good things, things that make me feel happy, will release that kind of sudden burst of happiness in my body, which means that अगर हम अपनी habits को भी attractive बनाए, उनको ऐसे shape करें, figure out करें जिससे हमें उसको करने में मज़ा आए, या कोई we just look forward to it, then it will just be easy to bring that into our life. So first is what to make your habits attractive. The first one is that यूज हैबिट स्टैकिंग विथ टेम्पटेशन बंडलिंग, विच मीन्स हमने ऑलरेडी बात किया कि अगर आपकी कोई करंट हैबिट है, ठीक है, उसके बाद यू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक टू डू बट यू नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? कोई एक हैबिट जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके एकदम बाद कोई एक ऐसी चीज़ करो जो आपको करने में मज़ा आता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव कॉफी. आप रोज सुबह 9 बजे उठते हो, आपको कॉफी पीना है क्योंकि आपको अच्छा लगता है और आपकी हैबिट बन चुकी है कि आप पियोगे ही पियोगे, तो आप पियो. उसके बाद मान लो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, और अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना या आई डोंट नो लेट्स से रीडिंग अ बुक इज समथिंग विच इज गुड फॉर यू बट यू डोंट डू इट, सो देन व्हाट यू डू, यू विल हैव योर कॉफी. उसके एकदम बाद आप कोई बुक पढ़ोगे और उसके एकदम बाद आप कोई ऐसी चीज़ करोगे जो आपको करना अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल आप सोचो चलो मैं आधा घंटे के लिए ना बुक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए फ़ोन चला लूँगी, उसके बाद 10 मिनट के लिए वीडियोस देख लूँगी यूट्यूब पे. सो ऐसे क्या होगा, आपको लगेगा कि ठीक है अभी मैं ये एक्टिविटी कर रही हूँ बिकॉज मुझे करना है, बट इसके बाद आई एम गोना डू समथिंग विच आई लाइक एंड दैट विल हेल्प यू फिट दिस habit that you need in your life. So that's number one. The second is that try to become friends with people who are already doing something you want to attract in your life very easily. For example, अगर मुझे रनर बनना है, मुझे भागने का मन है, कि मुझे दौड़ने का मन है और मुझे अच्छा लगता है कि maybe I should become, and I know it's very difficult for me, so I'll try to become friends with those people who are runners. I'll try to become
attract those people in my life because they will have a certain kind of energy around this activity. वो मुझे खुशी खुशी बताएंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे कुछ चीज़ें सिखाएंगे, समझाएंगे, खुद आसानी से करेंगे, सुबह उठ के भागेंगे, तो मुझे भी कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलती रहेगी, which is why I keep on saying it's very important to attract the right set of people in your life. So that's the second thing you can do. And the third thing is that कई बार ऐसे होता है कि हमको ना जब कुछ करने का मन नहीं करता, हमको कोई चीज़ बर्डन लगती है, तो हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि अरे यार I have to do grocery shopping, I have to take care of my nephew, I have to do this, कि करना पड़ रहा है. लेकिन अगर आप उस have to को ना get to में like replace करोगे get to से, so it becomes I get to take care of my nephew, I get to make this presentation, I get to go grocery shopping. एक वर्ड चेंज करने से ना आपका ज़रा माइंडसेट चेंज हो जाता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. सो दीज आर अगेन स्मॉल थिंग्स दैट विल हेल्प यू मेक योर हैबिट्स अट्रैक्टिव. थर्ड लॉ इज मेक योर हैबिट्स ईजी. हम कई बार ना अपनी लाइफ में बड़े जोर शोर में ना ऐसी बड़ी भारी भरकम हैबिट्स चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि वो फटाक से हो जाए और एकदम डिफिकल्ट, बहुत सारे फ्रिक्शन. नहीं हो पाएगा. ऐसी चीज़ें चूज करो जिसको करना आसान हो, आसानी से हो जाए, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट देम इन योर लाइफ. फर्स्ट, हम जब भी कुछ हैबिट्स चूज करते हैं, लेट्स से आई वांट टू रीड, राइट, तो मैं जाके गूगल में टाइप करूंगी बेस्ट बुक्स टू रीड. इफ आई वांट टू गेट एब्स, आई वुड राइट द बेस्ट एक्सरसाइजेस टू डू. और कई बार जब हमें वो बेस्ट चीज़ नहीं मिलती है ना, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है. हमें लगता है हमको बेस्ट तो नहीं मिल रहा, हम कुछ भी नहीं कर रहे. वी एम फॉर दैट परफेक्शन. बट दिस बुक सेज that if you want to master a habit, it's not about perfection, it's about repetition. अगर आपको फिट होना है, वेट लूज करना है, तो बेस्ट एक्सरसाइजेस, बेस्ट डाइट प्लान मत ढूंढो. किसी चीज़ से भी स्टार्ट हो जाओ, जो भी मिल रहा है स्टार्ट हो जाओ, रिपीट करते रहो, खुद समझ आएगा, खुद बेहतर होगे और खुद कुछ अच्छा पाथ चूज कर ही लोगे. सो डोंट लुक फॉर द बेस्ट थिंग्स और बेस्ट टाइमिंग. सेकेंड इज रिड्यूस फ्रिक्शन. बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, बड़ा फेवरेट है मेरा, वो देती हूँ. आपको वर्कआउट करना है, आपको जिम जाना है, ठीक है, आपने जिम की सब्सक्रिप्शन ले ली. आपने जिम की सब्सक्रिप्शन ली है ऐसे जिम में जो आपके घर से आधा घंटा दूर है, ठीक है. तो अब मान लीजिए सुबह उठोगे, शाम को उठोगे, जब भी आपको जिम जाना होगा आप सोचोगे कितना दूर है यार, कितना ट्रैफिक होगा, धूप हो रही है, बारिश भी आ रही है. सो देयर इज दिस फ्रिक्शन इन योर लाइफ कि आपने इतना दूर जाके जिम लिया है, तो फ्रिक्शन तो आएगा ही. तो बेस्ट है घर के पास लो, कि हल्का सा चलो, 2 मिनट की वॉक करो और वो हो जाए. तो ये छोटे छोटे फ्रिक्शंस अपने लाइफ में हटाओ अपनी हैबिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. थर्ड, टेक स्मॉल स्टेप्स. कुछ भी अगर आपको जिंदगी में बड़ा करना है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अप लेट्स से 10 in the morning, राइट, और आपको लगता है कि मुझे सुबह उठना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग टू डू. ऐसे नेक्स्ट डे का 6 बजे का अलार्म मत रख दो. एक दिन हो भी जाएगा, 2 दिन भी हो सकता है, बट इट विल नेवर बिकम अ हैबिट. मतलब इट माइट, आई मीन इट डिपेंड्स, बट मोस्टली इट वोंट बिकम अ हैबिट. मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, बट इट्स समथिंग दैट हैपेंस टू मी एंड दैट आई डू एवरी सिंगल समर एंड इट वर्क्स. तो मैं अपना स्टैम्प ऑफ अप्रूवल लगा के दे सकती हूँ. विंटर्स में मेरे हमेशा स्लीपिंग शेड्यूल खराब होता है. जैसे ही समर्स आता है, आई लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है. हर आधे घंटे में मैं अपना स्केड्यूल कम करती हूँ. अगर मैं 9 बजे उठ रही हूँ तो मैं कुछ दिनों के लिए 8:30 बजे उठूंगी, फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए 8 बजे उठूंगी, और धीरे धीरे आधा घंटा कम करते करते एक टाइम पे मैं 6 बजे उठना शुरू कर देती हूँ. सो इट्स अबाउट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स इन लाइफ. ऐसे नहीं कि कुछ मैं एकदम बड़ा करना चाहती हूँ और वो एकदम मुझसे बड़ा हो जाएगा. तो आई मीन जस्ट टेक स्मॉल स्टेप्स. फोर्थ इज, अपनी जितनी भी नई आदतें आप चूज करते हो, मेक श्योर ऑल ऑफ देम कैन बी डन इन 2 minutes, ओनली 2 minutes. इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वरना आप सोचने लग जाओगे. बुक पढ़नी है, 10 बुक्स भी पढ़नी है ना, सोचो मैं दिन के सिर्फ 2 पेज पढ़ूंगी 2 मिनट के लिए. अगर हैबिट बन गई, अच्छा लगा, तो आप ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दोगे, या बहुत ही बोर हो जाओगे, यू विल रियलाइज रीडिंग है मेरे बस की नहीं है. बट अगैन इट गोज बैक टू द फर्स्ट वन, डोंट चूज परफेक्ट बुक जो सब लोग पढ़ रहे हैं. चूज एनीथिंग यू लाइक. रीड ट्रैश, पढ़ने की हैबिट बनाओ और फिर अच्छी बुक्स पढ़ना चालू करो. सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक योर हैबिट्स सुपर इजी. The fourth law is that our habits should be satisfying. ये जो हमारा आज का दौर है, ये हमारा आजकल का जो ज़माना है ना, इसमें इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से ना हमें सब कुछ बड़ी जल्दी मिल जाता है. तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ना बड़ी बुरी आदत लगी हुई है. हमने अभी अपनी इंस्टाग्राम पे रील्स डाली, हमको अभी लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ चाहिए. हमने अभी जिम ज्वाइन किया, हमको अभी एप्स चाहिए. हमने अभी बुक्स पढ़ना चालू किया, हमको ऐसे बनना है कि सबसे इंटेलेक्चुअल इंसान. बट the things that give you short-term gain, something like short-term happiness, is generally not good in the long term. So this was like the general context, but the idea is इसके अलावा भी, like we know this, we know कि अच्छी आदतों में वक्त लगता है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो when you are attracting good habits
to sort of reward yourself, to satisfy yourself. So the first one is that reward yourself whenever you do something good. मान लीजिए कि आप वर्कआउट करते ही नहीं है, आपको एकदम कतई नहीं पसंद जिम जाना, बिल्कुल नहीं पसंद, बट आप चले गए, आपने ऊपर की 3 चीजें, आपने ईजी बनाया, आपने अट्रैक्टिव बनाया, आपने ऑब्वियस बनाया अपने हैबिट्स को, और आप जिम चले गए, आपने आधे घंटे वर्कआउट कर लिया. अगर कर लिया है, रिवॉर्ड योरसेल्फ. कुछ एक आधे घंटे का शो देख लो, एक चॉकलेट खा लो, आई डोंट नो व्हाटएवर, आई मीन कैलोरीज बैलेंस करके, बट देन हैव दैट, राइट? जस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ विद दोस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट हैप्पीनेस एज वी कॉल इट, बट डू दैट ताकि आपको ऐसा लगे कि चल ठीक है ये किया, बट इसके बाद मुझे ये रिजल्ट भी मिला है. द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज ट्रैक योर हैबिट्स. आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 2018 आई गेस, ऑन एंड ऑफ, बट मैं करती हूँ, और मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है हमेशा. आप कैसे भी कर सकते हो. मेरे पास एक प्रॉपर, मैं अपनी डायरी में आई राइट ऑल माई हैबिट्स, देन आई टिक एवरी डे क्या किया क्या नहीं किया, मैं वैसे करती हूँ. पहले मैं वो पूरा चार्ट डिज़ाइन भी करती थी अपने 2018-19 के जर्नल्स में. अब मैं नहीं करती, मैं बस नॉर्मल लिखती हूँ, देन आई टिक. अगर आप चाहते हो आप प्रोसेस ऑटोमेट करो, वो आप ऑटोमेट भी कर सकते हो. फिगर आउट, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वॉच, राइट? आई नो स्टेप्स कितने मैंने किए हैं, कितना मैंने पानी पिया, ऑल दिस थिंग्स आई कैन ट्रैक, राइट? इफ यू कैन ऑटोमेट दिस थिंग्स, नथिंग लाइक इट. सो डू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? And then make it satisfying in whatever way possible for you. स्ट्रीक का ट्रैक हैबिट करने का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज बस ये है कि कभी भी आपसे अगर एक स्ट्रीक मिस हो जाती है ना, तो डोंट लेट इट रूइन द एंटायर थिंग फॉर योरसेल्फ. ये लाइक दिस इज समथिंग दैट आई स्ट्रगल्ड विद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि मैं कोई स्ट्रीक मेंटेन करूंगी, मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगी. एक भी दिन अगर मैं 7:30 बजे उठी ना, तो मुझे लगता है कि अरे यार क्या है, अब 7:30 बजे उठते हैं, और फिर मैं चले जाऊंगी अपने एक स्ट्रीक पे, राइट? सो वो नहीं होने देना. अगर एक मिस्टेक हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा नेक्स्ट डे आओ, and then don't repeat it is what actually the magic is all about. And the third thing you can do is have an accountability partner. जैसे मैंने पहले रनिंग का भी एग्जाम्पल दिया था, बट कोई भी चीज़ if you want to attract those kind of people in your life who sort of keep on motivating you. So I have a friend, her name is Tanya Bindra. So if you're watching this, Tanya, shout out to you and the amazing blog and Insta page that you have. I will link it down below in the description. You can check her out. She writes a lot of amazing stuff about life, about travel, ग्रेट राइटर, सो यू कैन चेक हर आउट. बट मेजरली एक अभी कुछ टाइम पहले हमारी बात हुई थी, हमने 1.5 घंटा बात किया, और वो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं भी करती हूँ. सो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट फॉर 1.5 hours. वी वर जस्ट लाइक sharing ideas, talking about things that we can do, and it was just like very motivating and satisfying. So have someone like that who constantly can, just push you in the right direction. So these are few ways in which you can make your habits like very, very satisfying. So overall with habits, the idea is उस इंसान को पकड़ो, उस इंसान को इमेजिन करो, फॉलो करो जो आपको इंस्पायर करता है, उसकी जो आदतें हैं अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो इन योर ओन वेज, एंड keep it doing with repetition. Don't think about perfection so much. This sort of like falls, this is true for everything. But जब भी आप कुछ स्टार्ट करो, don't just think कि I want to be perfect in it. मैं इतनी स्ट्रीक कंटिन्यू करूँगा, ऐसे करूँगा. थोड़ा थोड़ा करो, इजी बनाओ, ऑब्वियस बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, अपनी आदतों को सेटिस्फाइंग बनाओ, एंड देन स्लोली एंड स्टडीली यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग द गुड हैबिट्स इन योर लाइफ. So yes, this is all that I wanted to share for today's video. I really hope you enjoyed it and that it actually brought a lot of wisdom into your life. And yeah, you guys know the drill. If you like this video, give a thumbs up. Let me know in the comments below or whatever you think of it. Let me know really, guys. क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड टेल मी अबाउट योर हैबिट्स. व्हाट आर द गुड हैबिट्स दैट यू वांट टू इन्वॉल्व इन योर लाइफ. लेट मी नो अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो किए, अगर आपके लाइफ में कोई चेंज आया, या एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो. आई विल बी हैप्पी टू नो. एंड या, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई पुट अप ऑल दीज videos related to conscious lifestyle, personal growth, travel sometimes as well on my channel, and try to make and upload a video every Sunday at 6 p.m. So it'll be great if you can subscribe. Also click on the bell icon so you know whenever I put up a new video. And I'll see you soon next Sunday at 6 p.m. Until then, do whatever makes you happy. Bye bye.